हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो क्लियर। हाँ जी, हाँ भाई, इधर देखिए। अब इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड एयर pollination or wind pollination, that is known as anemophily. Anemophily is a common character in gymnosperm, but it is rare in angiosperm. Overall abiotic pollination is very rare or rare in the angiosperm. In angiosperm, most of the plants are pollinated by the biotic agents or the animals. If we'll talk about the wind, by air, water, hydrophily. And if we'll talk about the hydrophily or water pollination, then here the character is that pollen grains. Pollen grains are covered by mucilaginous sheath. And this mucilaginous sheath, this protect the pollen from the wetting. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर pollen grain wet हो गया, then it very rapidly lost its viability. And that's why pollen has to be protected from wetting, and this protection is carried out by the mucilaginous cover. It prevent wetting of pollen grain. If we'll talk about the hydrophily, then it is of two type. First, that is known as hypohydrophily, and second, that is known as epihydrophily. Epihydrophily and the hypohydrophily. Epihydrophily at surface of water. वाटर की सरफेस पर जो पॉलिनेशन होगा एपीहाइड्रोफिली, और जो इनसाइड वाटर होगा दैट इज नॉन एज हाइपोहाइड्रोफिली. वाटर की सरफेस पर पॉलिनेशन हो रहा है तो एपीहाइड्रोफिली, वाटर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली. एंड इफ विल टॉक अबाउट द हाइपोहाइड्रोफिली, एग्जांपल इज हाइड्रिला एंड जोस्टेरा. Zostera, this is marine plant also known as sea grass. और ये जो जोस्टेरा होता है, ये जो सी ग्रास होता है, इस सी ग्रास में रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स होते हैं. Ribbon like pollen grains are present, and these ribbon like pollen grains are passively moving towards female with the help of water. याद रखना भाई, यहां पर ये जो पॉलन ग्रेन है इनका कोई फिक्स मूवमेंट नहीं है. ये तो वाटर करंट के साथ जा रहे हैं. जिधर वाटर जा रहा है उधर ही पॉलन जा रहा है. और अगर बाई चांस उधर ही फीमेल फ्लावर हुआ तो पॉलिनेशन हो जाएगा, और अगर नहीं है तो पॉलन बह जाएगा, पॉलिनेशन नहीं होगा. रिमेंबर हियर, इन एंजियोस्पर्म, in this case water is required for the pollination, but here
pollen is passively moving along with the water. अगर आप इसको कंपेयर करो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट मेल गैमेट इज मूविंग टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ वाटर. वहां भी विद द वाटर है, लेकिन वहां पर मेल गैमेट का एक्टिव मूवमेंट होता है. वहां पर एक्टिव मूवमेंट है, वहां पर मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और फ्लैजिला या सीलिया की हेल्प से मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाते हैं. वहां डायरेक्शनल है बेटा, और यहां तो पैसिव मूवमेंट है अलोंग विद द वाटर करंट. ठीक है भाई. सो रिबन लाइक pollen grains are present, and if they comes in contact with the female, then these ribbon like pollen grain coil around the stigma and pollination occur. Hydrilla is a fresh water plant. इसमें भी वाटर के अंदर pollination होगा. If we'll talk about the epihydrophily, it occurs in the Vallisneria. And if we'll talk about the Vallisneria, the plant is under water. ये जो प्लांट होता है, यहां पर ये प्लांट वाटर के अंदर होता है. And here male and female plants are present in male and female flowers are present in different plant. Actually Vallisneria is a dioecious plant. Dioecious मतलब मेल फ्लावर अलग आएंगे, फीमेल फ्लावर अलग आएंगे. यहां पर अगर हम देखें कि जैसे ये एक फीमेल प्लांट है, इसमें फीमेल फ्लावर आया, एंड इन फीमेल फ्लावर द पेडिसल इज कॉइल्ड. पेडिसल, ये फीमेल फ्लावर है भाई पूरा, और ये फीमेल फ्लावर का पेडिसल, और ये पेडिसल कॉइल्ड है. एंड ड्यू टू दिस कॉइलिंग female flower remain under water. Another thing, this is another flower. This is the male plant having the male flower. यहां पर ये मेल प्लांट आ गया, मेल फ्लावर कंटेनिंग प्लांट आ गया, और इसमें this is the male inflorescence. Now due to the bursting in the inflorescence, male flowers are released at the surface of water. ये inflorescence है बेटा, और जब ये inflorescence burst होता है तो या तो male flower या pollen grain, they are released at the surface of water. और ये भी passively move करेंगे. Simultaneously what happen? Uncoiling occur. Pedicel uncoiled, and due to the uncoiling, the female flower reach at the surface of water. Pollen या मेल फ्लावर वाटर की सरफेस पर बह रहे हैं, और इधर क्या है, जो फीमेल फ्लावर था वो भी पेडिसल की अनकॉइलिंग की वजह से ऊपर आ गया. तो अगर बाई चांस ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो पोलिनेशन हो जाएगा. फिर बोल रहा हूं बेटा, इट्स पैसिव प्रोसेस. यहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं है कि ये जो मेल है ये इसकी तरफ ही जाएगा, नहीं. ये मूव कर रहा है ओनली एंड ओनली ड्यू टू द वाटर करंट. जिधर वाटर जा रहा है उधर ही मेल फ्लावर जा रहा है. ठीक है. और बाई चांस जिस साइड वाटर जा रहा है अगर उसी साइड फीमेल हुआ तो पॉलिनेशन हो जाएगा, और अगर फीमेल अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो कुछ नहीं होगा. इन दोनों ही केस में अगर अपन देखें तो टोटली रैंडम प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, डिपेंड्स ऑन द वाटर करंट. इसलिए here also large quantity of pollen is produced so that it compensate the loss of pollen grain. So these are two different type. Remember, hydrophily is rare. Hydrophily is rare in angiosperm. It is restricted or limited to only
about 30 genera of angiosperm, mostly monocots. ज्यादातर ये जो 30 जेनेरा है, इन 30 जेनेरा में भी ज्यादातर मोनोकॉट प्लांट्स है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? याद रखना, इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, in most of the aquatic angiosperm, pollination occur either by the air or by the insect. केवल थोड़े से एक्वेटिक प्लांट ऐसे हैं जिनमें पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से होता है। क्लियर है बात? बोलो भाई, बात समझ में आई? याद रखना, ज्यादा तक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन आइदर बाय एयर और बाय द इंसेक्ट। ओनली फ्यू एक्वेटिक प्लांट शो द पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन बेटा? ये पॉइंट याद रखना कि वेलेस्नेरिया डाइशियस प्लांट है। नाउ नेक्स्ट इज द biotic agent, and only one biotic agent is present, and this is animal. And animal pollination by animal is known as zoophily. और ये जो एनिमल पॉलिनेशन है, ये कई सारे अलग अलग एनिमल हो सकते हैं। अगर हम देखें तो यहां पर इट कैन बी इंसेक्ट, और अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन है तो इसको हम बोलेंगे एंटमोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू है तो ये कहलाएगा ऑर्निथोफिली। इफ इट इज बाय द बेट, known as chiropterophily. If it is by the snail, then it is known as malacophily. If it is by the snake, known as ophiophily. If it is by the ants or by the white ants, then it is known as मर्मेकोफिली। हाँ भाई, क्वेश्चन आया, इन अ प्लांट पॉलिनेशन अकर बाय द एंट्स। ऑप्शन है एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली, मैलेकोफिली, मर्मेकोफिली। मर्मेकोफिली। सेम क्वेश्चन आया, ऑप्शन आर एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली, काइरेप्टेरोफिली, मैलेकोफिली। हाँ, एंटमोफिली, बिकॉज एंड्स और व्हाइट एंड्स इज इंसेक्ट इटसेल्फ। याद रखना भाई, ये दोनों जो हैं ये इंसेक्ट्स ही हैं, और इस वजह से ऑप्शन में अगर मर्मेकोफिली नहीं दिया गया हो तो आंसर एंटमोफिली भी सही है। क्लियर है बात? एंड्स एंड व्हाइट एंड्स आर इंसेक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई अगर ऑप्शन में मर्मेकोफिली नहीं दिया गया हो तो एंटमोफिली भी आंसर सही होगा। क्लियर है बात? यहां पर बोलो, along with these, large animals are also involved in the process of pollination. Pollination can also carried out by lemur। एक प्राइमेट्स होता है बेटा, तो जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स भी पॉलिनेशन करते हैं। जस्ट लाइक दिस, अनदर थिंग, ट्री ड्वेलर्स, ट्री ड्वेलर रोडेंट्स, ट्री पर रहने वाले जो रोडेंट्स होते हैं जैसे स्क्वेरल, गिलहरी, गिलहरी भी पॉलिनेशन कर सकती है, और इनके लिए टर्म आता है आर्बोरियल। आर्बोरियल, ट्री ड्वेलर्स, ट्री पर रहने वाले। इसी तरह से कैन बी कैरिड आउट बाय द रेप्टाइल्स, फॉर एग्जांपल लिजर्ड्स एंड स्नेक। तो ये भी
पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है बात यहां तक? याद रखना, लिजर्ड एक तरह का रेप्टाइल्स ही है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया था और हम ये पढ़ते हैं कि लिजर्ड्स एंड स्नेक्स आर इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन, और स्टेटमेंट में दे दिया इन सम प्लांट पॉलिनेशन आल्सो अकर बाय द रेप्टाइल्स। तो स्टूडेंट्स जो है ये कोरिलेट ही नहीं कर पाए कि स्नेक एंड लिजर्ड रेप्टाइल्स है। इसी तरह से एंट्स और व्हाइट एंट में होता है कि अपन ये पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन बाय एंट्स और व्हाइट एंट्स दैट इज नॉन एज मर्मेकोफिली। अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम ये होता है मर्मेकोफिली ऑप्शन में नहीं है, तो स्टूडेंट ये नहीं कर पाते कि एंट्स और व्हाइट एंट इंसेक्ट ही है। तो मर्मेकोफिली अगर नहीं है तो ऑप्शन में एंटमोफिली सही आंसर होगा। क्लियर है बात? बोलो भाई। जूफिली more common in angiosperm. If we'll talk about the zoophily, in case of zoophily, usually flowers are large and attractive. याद रखना, अगर हम जूफिली की बात करें, एनिमल पॉलिनेशन की बात करें, तो एनिमल पॉलिनेशन के केस में जो फ्लावर्स होंगे, ये फ्लावर्स लार्ज होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं then they can produce a large size inflorescence. ठीक है भाई, किसी ना किसी तरह का अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहां पर अब एनिमल को अट्रैक्ट करना है भाई, और एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए किसी न किसी तरह का अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी वो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट होगा, नहीं तो आएगा नहीं। सेकेंड थिंग, यूजुअली दे आर हैविंग द नेक्टर ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड इज प्रेजेंट। ठीक है भाई, इसी तरह से इन सम प्लांट एडेबल पॉलन्स आर प्रेजेंट। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो पॉलन्स होते हैं, these pollens are used as a food by the insect and the bird. तो कुछ प्लांट्स में एडेबल पॉलन भी होते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होंगे। यहां तक किसी को कंफ्यूजन बेटा? ये वाला जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये मेज द कॉलम के लिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मेज द कॉलम में आ सकता है। बोलो भाई, यहां तक किसी को कंफ्यूजन बेटा? अब हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट पॉलिनेशन, एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज नॉन एज एंटमोफिली। The first type of pollination, first type of animal pollination, that is entomophily. And entomophily, that is insect pollination. And different type of insects are present in the entomophily. अगर हम यहाँ देखें तो एंटोफिली में अकर ड्यू टू द हनी बी। हनी बी इज द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर। याद रखना, एंटोमोफिलस प्लांट जो होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द एंटोमोफिलस प्लांट में पॉलिनेशन हनी बी के थ्रू होगा। इसी तरह से इट कैन बी फ्लाई, सम स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, moth, wasp, then beetles, ठीक है भाई। तो यहां अगर हम देखें तो हनी भी हो सकता है, फ्लाई हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकता है, मॉथ हो सकते हैं, वास्प हो सकता है, बीटल्स हो सकते हैं, एंट्स हो सकते हैं, व्हाइट एंट्स हो सकते हैं। These are some of the insect which works as a pollinator, and most common pollinator is honey bee. But honey bee does not visit red flower.
इन जनरल ये देखा गया है कि जिन प्लांट्स में रेड फ्लावर होता है, रेड फ्लावर पर हनी भी इन जनरल विजिट नहीं करती। रीजन दिखाई नहीं देता। हनी बी इज कलर ब्लाइंड फॉर रेड कलर, और रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होने की वजह से उसे रेड कलर अट्रैक्टिव रेड की फॉर्म में ना दिखकर यूजुअली ग्रे फॉर्म में दिखाई देता है, जो कि नॉन अट्रैक्टिव होता है। इसलिए हनी बी जो होती है वो रेड कलर के फ्लावर पर विजिट नहीं करती। देन अनदर थिंग, इन केस ऑफ एंटमोफिली, फ्लावर्स large and attractive. If flower is small, then they form attractive inflorescence. For example, sunflower. अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो इन सनफ्लावर रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट आर प्रेजेंट, and ray floret and disc floret are actually the flower. जो सनफ्लावर में बाहर दिखाई देता है ना आपको, वो सिंगल पेटल जो दिखता है आपको, वो एक फ्लावर है, पेटल नहीं है। और जब ये इतने छोटे छोटे से स्ट्रक्चर मिलते हैं तो इतना बड़ा सनफ्लावर बनता है। और ये सनफ्लावर अट्रैक्टिव और नॉन अट्रैक्टिव, और सिंगल पेटल, नॉन अट्रैक्टिव। तो जब फ्लावर स्मॉल होगा, then they produce inflorescence. Another thing, here nectar gland is present. Another thing, fragrance present. जो फ्लावर्स होते हैं, इन फ्लावर में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई स्मेल होगा। अगर हम बात करें नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स की, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स मींस ऐसे फ्लावर जो रात को ओपन होते हैं। कोई एग्जांपल? रात की रानी, सेस्टर्नम नॉक्टर्नम। और सेस्ट्रम नॉक्टर्नम जो होता है, रात की रानी जो होता है, आप में से कईयों ने देखा हुआ है, अगर एक प्लांट लगा दिया जाए ना, तो जब उसमें फ्लावरिंग आती है, प्रोफ्यूज्ड फ्लावरिंग होती है, उस समय इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है कि पूरे के पूरे स्ट्रीट में स्मेल आने लग जाती है। एक सिंगल प्लांट की बात कर रहा हूं बेटा। और जिनके घरों में होगा उनको पता होगा कि वो इतनी तेज स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि इरिटेशन होने लग जाता है। इसी तरह से नाइट जास्मिन, मोगरा, मोगरा जानते हो? मोगरा छोटा सा फ्लावर आता है व्हाइट कलर का, लेकिन स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये फ्लावर है नाइट ब्लूमिंग फ्लावर। एंड इन नाइट ब्लूमिंग फ्लावर पॉलिनेशन अकर बाय द मॉथ। यहां पर मॉथ के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और इसमें अगर हम देखें तो ये जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं, वाइट होते हैं, बट दे आर हाईली सेंटेड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय बीटल्स एंड फ्लाई, they produce फाउल ऑर्डर। याद रखो भाई, ये फाउल ऑर्डर हमारे लिए, बीटल्स और फ्लाई के लिए तो ये स्वीट स्मेल की तरह काम करता है। याद रखो भाई, ऑर्डर होता है, स्मेल जो होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि जो स्मेल आपको अच्छी लगे वो मुझे भी अच्छी लगे। सीधी सिंपल सी बात है भाई। और इसीलिए दुनिया भर में इतने सारे परफ्यूम बिकते हैं। अगर सबको एक ही स्मेल अच्छी लगती है तो एक ही तरह का परफ्यूम बिकता भाई।
ठीक है ना भाई। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो कई तरह के रीजन क्या है कि जो स्मेल आपको अच्छी लग रही है, जो आपके लिए स्वीट स्मेल है, स्वीट ऑर्डर है, हो सकता है वो आपके पास वाले के लिए है फाउल ऑर्डर हो जाए। हो सकता है बेटा। यहां पर बीटल्स एंड फ्लाई, the flower pollinated by the beetles and fly, they produce foul odor, or they generally produce the rotten meat like smell. rotten meat like smell, जब कोई एनिमल मर जाता है और जब वो रोटिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउल ऑर्डर आता है। लेकिन फ्लाई के लिए वो स्वीट है, क्योंकि फ्लाई जो होती है, बीटल जो होती है, उनके लिए वही रोटन मीट फूड होता है। तो वो तो ये मानकर चलती है कि वहां पर फूड है और उस फूड को लेने के लिए वो अट्रैक्ट होती है, तो इनमें अट्रैक्शन के लिए फाउल ऑर्डर होगा। ठीक है भाई। देन इफ विल टॉक अबाउट द लोटस, निम्फिया, हाँ कोई बात नहीं भाई, जब आए तो बता देना। लोटस, निम्फिया, वाटर हाइसिंथ और आइकॉर्निया, ये जो प्लांट होते हैं ये एक्वेटिक प्लांट हैं। बट इन दीज एक्वेटिक प्लांट pollination is by either air or by insect। ये जो एक्वेटिक प्लांट है, इन एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होगा, बल्कि या तो एयर के थ्रू होगा या इंसेक्ट के थ्रू होगा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस आया बोगनविलिया। एंड इफ विल टॉक अबाउट द बोगनविलिया, इन बोगनविलिया attractive bracts are present। आप में से ज्यादातर ने बोगनविलिया देखा होगा, और अगर आप बोगनविलिया के फ्लावर को देखो तो उसमें जो पेटल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कलरफुल अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर दिखती है, दीज कलरफुल अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली ब्रैक्ट्स। वो अट्रैक्टिव ब्रैक्ट्स है बेटा, और उसी की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। सेकंड केस, युक्का एंड प्रेन्यूबा मॉथ। एजेटिक्यूला और प्रोन्यूबा युक्कासेला। अगर हम देखें तो युक्का एंड प्रोन्यूबा, दे आर ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। याद रखना बेटा, ये दोनों म्यूचुअलिज्म का एक क्लासिकल एग्जांपल होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन और दे शो द म्यूचुअलिज्म। एंड हियर इफ विल सी पॉलिनेशन इन युक्का प्लांट, युक्का प्लांट का नाम है बेटा और प्रेन्यूबा इंसेक्ट का नाम है। पॉलिनेशन इन युक्का, इट अकर्स ओनली एंड ओनली बाय द प्रेन्यूबा मॉथ। इसके अलावा युक्का में कोई भी पॉलिनेशन नहीं कर सकता, और इस वजह से अगर एनवायरनमेंट में प्रेन्यूबा नहीं है तो युक्का में पॉलिनेशन नहीं होगा, युक्का का आगे जनरेशन नहीं आएगा। सेम थिंग, this Pronuba moth lays its egg inside the flower of युक्का। ये जो प्रोन्यूबा मोथ है, ये प्रोन्यूबा मोथ अपने अंडे युक्का के फ्लावर में, युक्का के ओवरी में देते हैं। तो अगर युक्का नहीं है तो प्रोन्यूबा इंसेक्ट अपने अंडे ले नहीं कर सकती। मतलब मैड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए साथ जिएंगे। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ को-इवोल्यूशन, कि अगर इन दोनों में से किसी में भी चेंजेस हो जाए तो दूसरा भी अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लेगा। को-इवोल्यूशन, को-एक्सटिंक्शन यहां पर हो सकता है। ठीक है भाई। हियर युक्का प्रोवाइड सेफ प्लेस, बेटा बातें नहीं, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग।
ठीक है भाई, इन अंडों से लार्वा निकलता है, और जब लार्वा निकलता है तो वो युक्का प्लांट जो होता है उसमें जो फ्रूट डेवलप हो रहा होता है उसमें जो सीड्स होते हैं उन सीड्स को यूज करता है एज अ फूड, मेच्योर होता है। तो याद रखो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देन द नेक्स्ट केस, and that is Amorphophilus. Amorphophilus. Amorphophilus is also known as Jamaican, and this is having the tallest flower. और ये जो होता है इसमें फ्लाई के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और ये जो होता है ये भी प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। ये भी एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल आता है हमारा सेफ प्लेस के लिए, दैट इज द फाइकस और द फिग। और फाइकस में पॉलिनेशन ब्लास्टोफेगा से होता है। ब्लास्टोफेगा इज अ वास्प। एंड इफ विल टॉक अबाउट द फाइकस, इन फाइकस हाइपेंथोडियम इनफ्लोरोसेंस इज प्रेजेंट। ये hypenthodium inflorescence, and here 3 different type of flowers are present, and this is the opening of inflorescence। ये inflorescence की opening है, और यहां पर स्ट्राइल फ्लावर्स हैं जिनको कहा जाता है कॉलफ्लावर। ऊपर की तरफ मेल फ्लावर होंगे, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर होंगे। नाउ दिस ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट एंटर्स इन द इनफ्लोरेसेंस टू ले एग। ये इंसेक्ट अंडे देने के लिए इनफ्लोरेसेंस में एंटर करती है। ये अपने अंडे देती है गॉल फ्लावर में। ठीक है भाई, तो ये यहां से इंसेक्ट एंटर कर रही है, लेकिन इंसेक्ट का साइज ऑस्टियोल के साइज के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ये जो पोर है ये बहुत छोटा सा होता है और इंसेक्ट का साइज इसके कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो जब वो एंटर करती है देन विंग्स गेट डैमेज्ड। तो जो इंसेक्ट होती है उस इंसेक्ट के विंग डैमेज हो जाते हैं, और जब विंग डैमेज हो जाते हैं तो इंसेक्ट एंटर तो कर जाती है लेकिन एग्जिट नहीं कर पाती। ठीक है भाई, अब वो इंसेक्ट जो एंटर की, इट लेज इट्स एग इनसाइड द गॉलफ्लावर। गॉलफ्लावर से लार्वा निकले, लार्वा से मेच्योर बना, मेच्योर में कॉपुलेशन हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेच्योर इंसेक्ट है दे form some tunnel like structures, they form the tunnel like structure और canal like structure। और ये कैनल लाइक और टनल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है मेल बनाता है, लेकिन इन स्ट्रक्चर को बनाते बनाते मेल की एनर्जी एग्जॉस्ट, मेल अंदर फीमेल इनमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, फीमेल बाहर निकली, ये फीमेल अपन अपने अंडे देने के लिए दूसरे इनफ्लोरोसेंस में जाएगी, और वहां पर जब जाएगी तो वो ऑस्टियोल से अंदर जाएगी। ऑस्टियोल से जब अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी से रब करेगी, क्योंकि साइज छोटा है ना बेटा, डैमेज होगा। लेकिन साथ में एक और चीज होगी कि जो इंसेक्ट की बॉडी पर पोलन ग्रेन लगे हुए हैं वो भी गिरेंगे, और जब वो गिरेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। याद रखना फाइकस में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, रीजन बिहाइंड इट प्रोटोगाइनी कंडीशन इज देयर, मतलब फीमेल मेच्योर अर्लियर देन द मेल, एंड दैट्स व्हाई दे शो द क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पर भी म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इट आल्सो प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर laying egg, and providing the safe place for egg laying, that is known as oviposition। याद रखना ये तीनों के तीनों ओविपोजिशन का काम करते हैं। ये एग ले करने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं।
इसके बाद अगला एग्जांपल आता है हमारा ऑफ्रिस, ऑर्किड एंड कॉल्पा इंसेक्ट. In Ophrys orchid, pollination occur by the Colpa insect. Ophrys orchid flower look like female insect. ठीक है भाई, फिनोमिना क्या कहलाता है? हाँ भाई, flowers looks like female insect. Phenomena is known as mimicry. ये pseudo copulation नहीं कहलाता बेटा. अगर ऑप्शन में मर्मेकोफिली और एंटमोफिली दोनों आ जाए तो मर्मेकोफिली को कहेंगे. हनी बी को रेड फ्लावर क्यों नहीं दिखता? फ्लावर तो दिखता है बेटा, लेकिन उसको रेड कलर नहीं दिखता. रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस होती है. हाँ भाई, इधर देखो, इस फिनोमिना को स्यूडो कॉपुलेशन नहीं कहेंगे, इस फिनोमिना को तो कहेंगे हम मिमिक्री. फ्लावर लुक्स लाइक फीमेल इंसेक्ट, दिस फिनोमिना इज नॉन एज मिमिक्री. और मिमिक्री का लेवल देखिए आप कि केवल फ्लावर का शेप, साइज और कलर ही इंसेक्ट जैसा नहीं है. The fragrance, the smell coming out from the flower is just like female pheromones. क्योंकि इंसेक्ट में कॉपुलेशन, इंसेक्ट में जो कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्शन होता है दैट इज ड्यू टू द फिरामोन्स. तो इसके फ्लावर से जो स्मेल निकलती है वो भी फीमेल फिरामोन जैसी होती है, और इसकी वजह से मेल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फ्लावर, ट्राई टू कॉपुलेट. अब प्रॉब्लम क्या आया कि ये फ्लावर है, ठीक है ना भाई, ये फ्लावर है, ये फीमेल नहीं है, और इस वजह से जो प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता. इसीलिए पॉलिनेशन फिनोमिना इज नॉन एज शूडो कॉपुलेशन. और जब when insect try to copulate, pollen grain spread and stick on the body of insect, because we are talking about the insect pollinated pollen. और पहले ही मैंने आपको बताया था कि insect pollinated pollen के चारों तरफ एक स्टिकी कवर होता है. किसका बना हुआ? pollen kit का. इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन के चारों तरफ पोलन किट होता है, और वो पोलन किट स्टिकी होता है. उसकी वजह से क्या है कि जब पोलन रिलीज हुआ तो वो इंसेक्ट के बैक पर, इंसेक्ट की बॉडी पर अटैच हो गया. अब ये इंसेक्ट इतना बेवकूफ है कि फिर दोबारा से फ्लावर के साथ कॉपुलेशन करने चला जाता है. और जब ये दोबारा से जाएगा तो वहां पर क्या होगा, इसकी बॉडी का पोलन स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा. सो process of pollination in Ophrys, pseudocopulation, and the process by which flowers looks like female insect, the process is known as mimicry. Pollination का टाइप pseudocopulation है, और फ्लावर इंसेक्ट जैसा हुआ वो कहलाएगा मिमिक्री. Then another condition, Rafflesia. And if we'll talk about the Rafflesia, in Rafflesia pollination occur by the carrion fly. और ये जो Rafflesia होता है, it produce rotten meat like odor. और इस ऑर्डर की वजह से ये कैरियन फ्लाई Rafflesia की तरफ अट्रैक्ट होगी. ठीक है भाई, यहाँ एक मिसकंसेप्शन कि पॉलिनेशन इन Rafflesia अकर बाय द एलिफेंट. Rafflesia में पॉलिनेशन तो फ्लाई के थ्रू होता है, एलिफेंट जो होता है वो सीड डिस्पर्शन में इन्वॉल्व होता है. बोलो बेटा, यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? बोलो. इसके बाद one another example, and that is the salvia. If we'll talk about the salvia,
In salvia, pollination occur by the lever mechanism or by the turnpipe mechanism. याद रखना, साल्विया जो होता है, साल्विया में पॉलिनेशन, in salvia pollination occur by a special type of mechanism, and this mechanism is known as lever mechanism or turnpipe mechanism. Here what happen? In salvia, bilabiate flowers are present. जो salvia होता है, इसमें फ्लावर बाइलेबिएट होते हैं. बाइलेबिएट, corolla forms a two lip like structure. दो लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, अपर लिप एंड द लोअर लिप. और यहां अगर हम देखें तो यहां पर फीमेल बाहर की तरफ ये प्रोजेक्टेड होता है. मेल में अगर हम स्टेमन की बात करें, दिस इज एंथर लोब एंड दिस इज द एंथर लोब. अगर आपको याद हो तो साल्विया में एक स्पेशल कंडीशन था, हेटेरोस्टाइली तो था ही सही, और कुछ स्टेमिनोड इज स्टेराइल स्टेमन. और साल्विया एक ऐसा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जहां पर एक एंथर का एक एंथर लोब फर्टाइल होता है और दूसरा एंथर लोब स्टेराइल होता है. ये पूरा एक एंथर है बेटा जो मैंने बनाया. नाउ insect come to consume the nectar. जब इंसेक्ट आता है और वो नेक्टर को कंज्यूम करने के लिए एंटर करता है, बैठता है, तो वो कहीं ना कहीं इस स्टेमिनोड को टच करता है. एंड व्हेन इट टच द स्टेमिनोड, द फर्टाइल एंथर लोब हिट बॉडी ऑफ इंसेक्ट. यहां पर स्टेराइल स्टेमन जब अंदर की तरफ पुश होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टाइल स्टेमन होता है, वो जो फर्टाइल एंथर लोब होता है, वो इंसेक्ट की बॉडी पर हिट करता है. और जैसे ही वो हिट करता है, पोलन रिलीज हो जाता है. पोलन बॉडी पर स्टिक कर गया. अब जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर में जाएगा तो वहां पर ये फीमेल है बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड, उसके कांटेक्ट में आएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा. यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए नहीं होता बिकॉज प्रोटेंडरी कंडीशन इज प्रेजेंट. मेल मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल. तो एक लीवर को पुश किया, एक लीवर के पुश करने से दूसरा लीवर एक्टिव हुआ, इसलिए मैकेनिज्म कहलाया लीवर मैकेनिज्म और द टर्न पाइप मैकेनिज्म. नाउ देन देयर इज अ फ्लोरल रिवॉर्ड्स. याद रखना बेटा, नेचर एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, गिव एंड टेक. अगर प्लांट को पॉलिनेशन करवाना है तो पॉलिनेटर को किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई लालच देना पड़ेगा, कोई ना कोई रिवार्ड देना पड़ेगा, रिश्वत देनी पड़ेगी. और उस रिश्वत को नाम दिया गया रिवार्ड्स, फ्लोरल रिवार्ड्स. पॉलिनेटर प्लांट और फ्लावर गिव सम और अदर टाइप ऑफ रिवार्ड्स to the pollinator for the continuous visit. कि लगातार पॉलिनेटर फ्लावर या प्लांट पर आए, इसके लिए उसको रिवार्ड देने पड़ते हैं. एंड मोस्ट कॉमन रिवार्ड दैट इज द नेक्टर. सेकेंड, एडेबल pollen. And third is provide safe place for egg laying. ठीक है भाई. और यहां पर जब हम लिखते हैं प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग, तो यहां पर ये जो प्लांट्स होते हैं या ये जो फ्लावर्स होते हैं, दे आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग लार्वास. जो लार्वा होते हैं उनको ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ठीक है भाई. अब क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं ओवर स्मार्ट होते हैं कि वो क्या करते हैं, रिवार्ड तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते. तो इनको फिर हम बोल देते हैं चीटर या पॉलन
robbers or the nectar robbers and pollen robber or nectar robber, they consume pollen or nectar without carry out pollination. मतलब ये नेक्टर या पोलन ग्रेन इनको तो कंज्यूम कर लेंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं करेंगे, तो ये कहलाएंगे पोलन रोबर और नेक्टर लोबर. सम स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई की कुछ स्पीशीज ने क्या अडेप्टेशन किया है कि इन जनरल अगर हम देखें तो ये फ्लावर है और इस फ्लावर के बेस पर नेक्टर ग्लैंड है. फ्लावर के बेस पर नेक्टर ग्लैंड है, तो नेक्टर सक करने के लिए इंसेक्ट को फ्लावर के अंदर एंटर होना पड़ेगा. और जब फ्लावर के अंदर वो इंसेक्ट एंटर होता है तो कहीं ना कहीं वो मेल और फीमेल के कांटेक्ट में आता है, पॉलिनेशन होता है. लेकिन ये जो नेक्टर रोबर या पॉलन रोबर होते हैं, इन्होंने क्या अडेप्टेशन किया कि ये फ्लावर के अंदर एंटर नहीं करते बल्कि बाहर से अपने टेंटकल को एंटर कराते हैं अपोजिट डायरेक्शन से और वहां से नेक्टर को सक कर लेते हैं. तो फ्लावर में अगर पॉलिनेटर एंटर नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा. लेकिन चीटिंग एक ही तरफ नहीं होती, दूसरी तरफ भी होती है. भाई चीटिंग दोनों तरफ है भाई, कि यहां पर पॉलिनेटर ने अगर चीट किया तो यहां पर प्लांट भी चीट कर रहा है. ठीक है भाई, क्लियर है बात यहां तक बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक? हाँ बेटा, ऑनलाइन क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन? निम्फिया भाई देखो, वाटर लिली एक कॉमन टर्म है और निम्फिया एक तरह की वाटर लिली है. ठीक है ना, वाटर लिली तो एक कॉमन टर्म है, बहुत सारे प्लांट के लिए यूज होती है. और निम्फिया भी एक तरह की वाटर लिली है. निलंबो लोटस को बोलते हैं बेटा. ठीक है भाई, तो ये तो बात हुई हमारे इंसेक्ट पॉलिनेशन की. नाउ नेक्स्ट इज द बर्ड पॉलिनेशन. एंड बर्ड्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फ्लावर टू कंज्यूम द नेक्टर. बर्ड पॉलिनेशन इज नॉन एज ऑर्निथोफिली. और यहां पर जो बर्ड इन्वॉल्व होती हैं वो यूजुअली होती है आइदर सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड. और ये जो फ्लावर्स होंगे, इन फ्लावर में नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होगी और नेक्टर ग्लैंड के साथ साथ इनमें एडेबल पॉलन होंगे. Then the example and the first example, that is Callistemon. Callistemon, this plant is also known as bottle brush plant. रेड कलर का इन्फ्लोरोसेंस आता है इतना बड़ा, और इसका इन्फ्लोरोसेंस जो होता है बॉटल ब्रश जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस प्लांट का नाम रखा गया है कैलिस्टेमॉन. देन अनदर एग्जांपल बिग्नोनिया. बिग्नोनिया में भी पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होगा. नेक्स्ट इज द कायरप्टेरोफिली. और ये जो पॉलिनेशन है दिस इज बाय द फ्रूट बेट. फॉर एग्जांपल एंथोसिफेलस, कदम्बा. एक प्लांट होता है कदम, हिंदू मिथोलॉजी में ये जो प्लांट है भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं, कदम का प्लांट है. तो ये जो कदम का प्लांट होता है इसमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है. इसी तरह से इधर देख लेना बेटा, अब एक प्लांट होता है बनाना, और बनाना में क्यों प्लांट नहीं होता क्या भाई? बनाना कुछ और होता है क्या? प्लांट ही है ना, तो प्लांट है. और ये जो बनाना का प्लांट होता है इसमें पॉलिनेशन आइदर बाय द बर्ड और बेट, मोर कॉमन बेट. बनाना में कॉमनली पॉलिनेशन बैट के थ्रू होता है. अब आप कहोगे कि सर पॉलिनेशन बनाना में क्यों? क्योंकि वहां फर्टिलाइजेशन तो है ही नहीं, पार्थेनोकार्पी है. तो याद रखो पॉलिनेशन होता है लेकिन पॉलिनेशन के आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता. हाँ, इधर देखो बेटा,
तो काइरेप्टरोफिली फ्रूट बेड के थ्रू, एंथोसिफिलस। इसी तरह एक प्लांट होता है सॉसेज ट्री, काइगेलिया, और काइगेलिया प्लांट जो होता है उसमें भी काइरेप्टरोफिली होती है। इसके बाद आया मैलेकोफिली, एंड मैलेकोफिली पॉलिनेशन बाय स्नेल, और ये एक्वेटिक प्लांट लेमना में होगा। इसी तरह से ऑफियोफिली, ऑफियोफिली बाय द स्नेक, और स्नेक के थ्रू सेंटेलम। ऐसा माना जाता है कि जो चंदन का ट्री होता है, सेंटेलम ट्री या सैंडलवुड ट्री, इसमें स्नेक लिपटे हुए होते हैं, और यही स्नेक इसमें पॉलिनेशन भी करते हैं। बेटा फालतू की बातें नहीं, ठीक है ना। इसके बाद मर्मेकोफिली, एंड मर्मेकोफिली बाय द एंड्स एंड वाइट एंड्स, एंड दैट इज इन मैंगो, इन लीची। याद रखना, मैंगो में पॉलिनेशन यूजुअली एंड्स के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, लेकिन कभी कभी बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, इसमें हो सकता है एक से ज्यादा पॉलिनेटर हो। हमने जो पढ़े हैं वो मोर कॉमन है। जैसे मैं मैंगो में बोल रहा हूं कि मैंगो में पॉलिनेशन यूजुअली एंड्स या इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, लेकिन बर्ड्स के थ्रू भी होता है। और बनाना, बनाना में पॉलिनेशन बर्ड और बैट दोनों के थ्रू होता है, लेकिन कॉमनली बैट के थ्रू होता है। और अगर अपने कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने को कॉमन कंडीशन ही बतानी है। ठीक है भाई, यहां तक बोलिए बेटा। कोई क्वेश्चन बेटा यहां तक? So these are the events of pollination, and after pollination next event is the fertilization. हाँ भाई, सारा क्लियर है यहां तक? अब हम आए फर्टिलाइजेशन। And if we'll talk about the fertilization, the very first step of fertilization is the germination of pollen grain and growth of pollen tube. ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो सबसे पहले आएगा जर्मिनेशन ऑफ pollen grain and growth of pollen tube. If we'll talk about the fertilization, after fertilization, pollen lands on stigma. हाँ भाई, करूं स्टार्ट? इधर देख लेना बेटा। अगर हम देखें तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ करेक्ट pollen और ट्रांसफर ऑफ ओनली कंपेटिबल pollen ऑन द स्टिग्मा। ये हमारा पूरा का पूरा एक पिस्टिल या कार्पल है, इस पर ये पॉलन आए, और ये जो पॉलन है, इन पॉलन में दो तरह के पॉलन हो सकते हैं, आइदर कंपेटिबल और द इनकम्पेटिबल। कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल। तो अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो पॉलन और पिस्टिल के बीच में एक इंट्रक्शन स्टार्ट होगा। pollen pistil interaction started, and this pollen pistil interaction is a chemical process. In this interaction, chemical of pollen interact with those of stigma.
स्टिग्मा के केमिकल और पोलन के केमिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट आता है उसके बाद ये डिसाइड होता है कि पोलन कंपेटिबल है या इनकम्पेटिबल है। ठीक है भाई, जब ये डिसाइड हो गया कि पोलन कंपेटिबल है देन फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट। अब यहां पर compatible pollen, and when pollen is compatible then pollen absorb moisture from the stigma। यहां पर बोरॉन और शुगर आएगा। जब पोलन मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेगा मींस एंडोऑस्मोसिस अकर। व्हेन एंडोऑस्मोसिस अकर साइज ऑफ वेजिटेटिव सेल और द पोलन ग्रेन इंक्रीजेस। और जब वेजिटेटिव सेल का साइज इंक्रीज करेगा देन इंटाइन कम्स आउट एज अ पोलन ट्यूब फ्रॉम एनी ऑफ द जर्मोपोर। अगर हम पोलन का स्ट्रक्चर देखें तो पोलन के स्ट्रक्चर में दो वॉल थे, एक एक्साइन एक इंटाइन। ठीक है भाई, एक्साइन बाहर वाला था और कुछ जगह पर एक्साइन नहीं था, उनको नाम दिया गया था जर्मपोर। और उन्हीं जर्मपोर में से किसी भी एक जर्मपोर से पोलन ट्यूब बाहर आ जाएगा। प्रोसेस इज नोन एज पोलन जर्मिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलन germination. And remember, all different compatible pollens show the germination on stigma. ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कंपेटिबल पोलन जर्मिनेट करेगा, जितने भी कंपेटिबल पोलन हैं सारे के सारे जर्मिनेट करेंगे, सारे के सारों में से पोलन ट्यूब आएगा। यूजुअली वन पोलन ट्यूब कम्स फ्रॉम वन पोलन। Usually one pollen tube comes from one pollen, but sometime more than one pollen tube come. याद रखो, यूजुअली एक पोलन में केवल और केवल एक ही पोलन ट्यूब बनता है, और जब एक पोलन से एक पोलन ट्यूब बने द प्रोसेस इज नोन एज मोनोसाइफोनोगेमी। लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बन जाते हैं, और जब एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बनते हैं द कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइफोनोगेमी, मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी। ठीक है भाई, तो यहां पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ, एंडोऑस्मोसिस हुआ, इंटाइन पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आया। अब यहां पर ये कंपेटिबल पोलन, और ये जो कंपेटिबल पोलन है इनसे पोलन ट्यूब बाहर आ गया। ब्लू कलर में जो हम बना रहे हैं वो कंपेटिबल पोलन है, और ब्लैक वाले जो है वो इनकम्पेटिबल पोलन है। तो पहला स्टेप हुआ, पोलन ट्यूब बना। इसके बाद इन नेक्स्ट स्टेप एंट्री ऑफ VCN इन vegetative cell nucleus enter inside the pollen tube and occupy the terminal position। अब क्या होगा कि जो VCN है, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस पोलन ट्यूब में एंटर करेगा, और जब ये पोलन ट्यूब में एंटर करेगा इट ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन। ये इस तरह से पोलन ट्यूब, और यहां पर ये VCN, यहां पर ये VCN। जितने भी कंपेटिबल पोलन है सारे के सारे कंपेटिबल पोलन का पोलन ट्यूब ग्रो करेगा, पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले VCN पोलन ट्यूब में एंटर करेगा, टर्मिनल पोजीशन पर आएगा, बिकॉज VCN रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब किधर जाना है, कितना ग्रो करना है, वो सारा का सारा कंट्रोल VCN करता है, और इसी वजह से VCN इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन। यहां पर दिस इज GC, दो सेल थे GC एंड VC, तो ये तो VCN VC और ये हो गया GC।
अनदर थिंग, इधर देखना बेटा, अब स्टिग्मा सॉलिड और लिक्विड? हाँ भाई, स्टिग्मा सॉलिड और लिक्विड? सॉलिड। पोलन ट्यूब? हाँ भाई, पोलन ट्यूब। अरे दो हैं आपके पास, सॉलिड या लिक्विड? हाँ, दोनों सॉलिड है। अब जब दोनों सॉलिड है तो पोलन ट्यूब जो है स्टिग्मा को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। सो पोलन ट्यूब सिक्रीट एंजाइम्स, pollen tube secrete hydrolytic enzyme, and these hydrolytic enzyme digest the or hydrolyze the stigmatic tissue। जो स्टिग्मा के टिश्यू हैं, जो स्टिग्मा के टिश्यू है उनका हाइड्रोलिसिस होगा, और जब हाइड्रोलिसिस होगा स्मॉल पोर्स आर फॉर्म्ड एंड थ्रू दीज पोर पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा। अब पोलन ट्यूब ने पेनिट्रेट कर दिया। अब अगला प्रॉब्लम आया, स्टाइल। और मैंने आपको पहले भी बताया था देयर आर टू टाइप ऑफ स्टाइल, हॉलो एंड द सॉलिड। अगर होलो स्टाइल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If style is hollow, then there is no problem, pollen tube can easily move. But if style is solid, then solid style is having a special type of tissue which is known as transmission tissue। याद आया? और वो ट्रांसमिशन टिश्यू को डिसॉल्व करने का काम पोलन ट्यूब के एंजाइम करेंगे। Again, pollen tube secrete the enzyme, mainly it secrete pectinase and cellulase। दो एंजाइम मोस्टली ये सिक्रेट करता है, एक पैक्टिनेज, दूसरा सेल्यूलेज। और ये जो होता है ये ट्रांसमिशन टिश्यू को हाइड्रोलाइज करते हैं, और उससे जो पासेज बनता है उससे पोलन ट्यूब ग्रो करता जाता है। यहां तक क्लियर है भाई बात? बोलो। अब इसके बाद नाउ पोलन ट्यूब इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द ओव्यूल। इन नेक्स्ट स्टेप growth of pollen tube towards ovule। अब ये जो पोलन ट्यूब है ओव्यूल की तरफ ग्रो करेगा, और जब ये ओव्यूल की तरफ ग्रो करेगा दिस मोमेंट इज एक्चुअली द कीमोट्रोपिक मोमेंट। कीमोट्रोपिक मोमेंट मींस a growth moment which occur due to the chemicals। केमिकल्स की वजह से ग्रो करना, that is known as chemotropic। So pollen tube show the chemotropic movement in the style। Another thing, the pollen tube it show the apical growth, means only and only tip of the pollen tube grow। अगर हम देखें ये पोलन ट्यूब, तो इस पोलन ट्यूब का केवल इतना सा पार्ट ग्रो करेगा, और ये जो टिप ग्रो कर रहा है इसी को हम बोलेंगे एपिकल ग्रोथ। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ इज 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इससे ऊपर भी और इससे नीचे भी पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोरॉन, कैल्शियम एंड इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोरॉन, कैल्शियम एंड इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। दो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा, बोरॉन और कैल्शियम, और ये तीनों मॉलिक्यूल, ये तीनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। मेनली इन तीनों में से बोरॉन। याद रखना, अगर तीनों में से कोई एक बताना हो तो बोरॉन, नहीं तो बोरॉन, कैल्शियम एंड इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। तो अब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ ग्रो कर रहा है। देन एंट्री ऑफ जीसी इन पोलन ट्यूब एंड डिवीजन। डिवीजन कौन सा होगा भाई, माइटोसिस और मियोसिस? हाँ, माइटोसिस। और जब इसमें डिवीजन होगा दो मेल गैमेट बनेंगे। नाउ
याद रखो, जितने भी कंपेटिबल पोलन है सबके सब में ये फिनोमिना हो रहा है जो मैं यहां शो कर रहा हूं, सब में हो रहा है ये फिनोमिना। मैं केवल एक शो कर रहा हूं क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम है भाई। सबसे आगे यहां पर VCN और इसके पीछे की तरफ ये दो मेल गैमेट। ठीक है भाई। अब ये पोलन ट्यूब ग्रो करता हुआ आ गया ओव्यूल के पास में। दिस ग्रोथ रिमेन कंटिन्यूअस and pollen tube reach near to the ovule. बोलिए भाई, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? वो सारे पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए केमिकल सिक्रेट करेगा जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ जी, बोलो भाई, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? ये जितने भी इवेंट्स मैंने लिखे, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द पोलन पिस्टिल इंट्रक्शन। ऑल दीज इवेंट्स, द इवेंट्स फ्रॉम pollen landing on stigma to the entry of pollen tube inside the ovule are combinedly known as pollen pistil interaction. And pollen pistil interaction is chemical mediated process, and in this chemical mediated process chemicals of pollen and pistil are involved. This is a continuous process. इधर देख लो बेटा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस कैसे कि यहां पर भी हो रहा है, 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 लगातार चलता जा रहा है। Another thing, it is a dynamic process. Dynamic process means when chemicals of pollen and pistil interact to each other, a product is formed, and this product indicate whether the next step has to occur or not to occur. वो जो प्रोडक्ट आया, वो जो रिजल्ट आया केमिकल इंट्रैक्शन का, वो डिसाइड करेगा कि अगला स्टेप होना है या नहीं होना। इसीलिए इसको बोला गया डायनामिक प्रोसेस। यहां तक बोलिए बेटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगी, एंड नॉर्मली पोलन ट्यूब एंटर्स इन ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। और जब माइक्रोपाइल से एंटर करेगा, देन इट इज नॉन एज पोरोगेमी थ्रू माइक्रोपाइल, एंड दिस इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा कॉमन, एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा कॉमन एंट्री थ्रू द माइक्रोपाइल। लेकिन कभी कभी ये इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकल से एंटर कर जाता है, और जब ये इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकल से एंटर करेगा, देन इट इज नॉन एज मीजोगेमी। मीजोगेमी थ्रू इंटेग्यूमेंट, और समटाइम इट एंटर्स थ्रू द चेलेजा, और जब चेलेजा से एंटर करेगा, देन इट इज नॉन एज चेलेजोगेमी थ्रू चेलेजा। फॉर एग्जाम्पल कैजुराइना, फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा। ठीक है भाई, मीजोगेमी का एग्जांपल है कुकुरबिटा, और चेलेजोगेमी का एग्जांपल है कैजुराइना। एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है पोरोगेमी। ठीक है भाई, इस पूरे स्टेप में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए बेटा। हाँ भाई,
मतलब अब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर कर गया है। ओव्यूल में ये कहीं से भी एंटर करे, चाहे माइक्रोपाइल से करे, चाहे इंटेग्यूमेंट से करे, चाहे चेलेजा से करे, एम्ब्रियो सेक में हमेशा एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से ही होगी। अब हम आते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रक्शन। नेक्स्ट इज द पोलन pistil intruction. All the events from pollen landing on stigma to entry of pollen tube in ovule, ये सारे के सारे इवेंट्स कहलाएंगे pollen pistil intruction. And pollen pistil intruction, this is a chemical process. और इस केमिकल प्रोसेस में केमिकल ऑफ pollen and pistil is involved. Another thing, this is a continuous process. This is a dynamic process. इधर देखो बेटा, अब ये प्रोसेस होता क्यों है? हाँ भाई, क्यों होता है ये प्रोसेस? This process is to recognize the compatible and incompatible pollen. ये जो सारी इतनी सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें केवल इसलिए हो रही है कि जो पोलन आया है वो कंपेटिबल है या इनकम्पेटिबल है। इनकम्पेटिबल दो तरह का, एक तो ये है कि हो सकता है किसी दूसरी स्पीशीज का पोलन आ गया हो, और ये भी पॉसिबल है कि अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, पढ़ा था एक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसको रोकता है? सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। तो दो कंडीशन है बेटा इनकम्पेटिबल की। पहली, क्या तो पोलन ही किसी दूसरी स्पीशीज का आ जाए, या दूसरी कंडीशन है कि अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है तो खुद का पोलन आ जाए। तो दोनों ही कंडीशन में कंपेटिबल पोलन को इनकम्पेटिबल पोलन से अलग रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सारा प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस इज टू रिकॉग्नाइज कंपेटिबल पोलन and incompatible pollen. If pollen is compatible, then pollen is accepted. अगर pollen compatible है, सही pollen है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। देन फर्दर डेवलपमेंटल प्रोसेस अकर। और अगर ये इनकम्पेटिबल पोलन है, देन दिस पोलन इज रिजेक्टेड एंड नो फर्दर डेवलपमेंट अकर। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। कब तक? जब तक पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाए। एक बार पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर गई, उसके बाद ये स्टेज नहीं होंगे। फिर ये मान लिया जाएगा कि जो पोलन आया है वो बिल्कुल सही है, कंपेटिबल है। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है। पहला, all the compatible pollen which are present on the stigma germinate and produce the pollen tube. कंफ्यूजन ये रहता है कि केवल एक पोलन जर्मिनेट करता है। दूसरा,
The pollen tube from all the different compatible pollen grow inside the style. जितने भी कंपेटिबल पोलन है उनसे जो पोलन ट्यूब निकले वो सारे के सारे पोलन ट्यूब स्टाइल में ग्रो करेंगे. तीसरा, growth of pollen tube is regulated or controlled by the VCN, and that's why VCN is present at the terminal position. याद रखना VCN जो होता है वो सबसे आगे होता है, मेल गैमेट पीछे होते हैं. अब यहां प्रॉब्लम क्या आता है कि अपने एनसीईआरटी में एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब का एक डायग्राम दिया हुआ है, अपने मॉड्यूल में भी दिया है, और उस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो उसमें मेल गैमेट आगे है और वीसी पीछे है. वो भी सही है, मैं भी सही हूं. रीजन क्या होता है कि जब तक पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंटर नहीं करता तब तक तो वीसीएन आगे, लेकिन जैसे ही वो एंटर करने लगता है वीसीएन डिजनरेट करने लगता है, और जब वीसीएन डिजनरेट करता है तो उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, और साइज रिड्यूस होने की वजह से जो मेल गैमेट अभी तक पीछे थे वो आगे आ जाते हैं. ठीक है भाई, तो याद रहे VCN is present at the terminal position, present at the tip of pollen tube. यहां तक क्लियर है भाई सर? बोलो. अब हम आते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रियो सेक. नेक्स्ट इज द एंट्री ऑफ pollen tube inside embryo sac, and this entry always occurs through micropylar end. याद रखो भाई, अगर हम बात करें ओव्यूल में एंट्री की तो ओव्यूल में एंट्री माइक्रोपाइल से भी हो सकती है, इंटेग्यूमेंट से भी हो सकती है और चेलेजा से भी हो सकती है, लेकिन एंट्री कहीं से भी हो, एम्ब्रियो सेक में अगर एंटर करना है तो उसको माइक्रोपाइलर एंड पर जाना पड़ेगा. रीजन, बिकॉज एग एपरेटस और सिनर्जिड इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड. This entry is guided by chemicals secreted by filiform apparatus of synergid. What is the ploidy level of filiform apparatus? हाँ भाई, filiform apparatus का ploidy, synergid का, सिनर्जिड का तो होगा. ऐसे क्या कर रहे हो भाई? सिनर्जिड का तो होगा. फिलिफॉर्म एपरेटस इज ओनली अ पार्ट ऑफ सिनर्जिड. ठीक है बेटा, तो फिलिफॉर्म एपरेटस जो सिनर्जिड में प्रेजेंट होता है वो केमिकल सिक्रेट करता है, और ये पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सेक में एंट्री को गाइड करने का काम करेगा. अनदर थिंग, इट अकर्स थ्रू degenerating synergid. हाँ भाई, सिनर्जिड कितने हैं? एक या दो? हाँ, दो सिनर्जिड. when pollen tube comes near to the embryo sac, one of the synergid start degenerating. याद रखना, जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के पास पहुंच जाता है दो इवेंट एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं. एक इवेंट होता है डीजनरेशन ऑफ वीसीएन और दूसरा होता है डीजनरेशन ऑफ सिनर्जिड. सो नाउ one of the synergid start to degenerate and pollen tube enters inside the embryo sac through this degenerating synergid. synergid कितने? दो, और दो में से एक यहां पर डिजनरेट होने लगता है, दूसरा अभी परसिस्ट कर रहा है. ठीक है भाई, तो यहां अगर हम देखें, दिस इज द कंडीशन. अब मैं केवल और केवल एम्ब्रियो सेक का एक पार्ट बना रहा हूं. यहां पर ये दो सेल, ये वाला सेल है
सिनर्जिड, और ये है सिनर्जिड का फिलीफॉर्म एपरेटस। यहां पर ये वैक्यूल और इसमें ये एक न्यूक्लियस। ये सिनर्जिड सेल का न्यूक्लियस। एनसीईआरटी में यहां पर सिनर्जिड दिया हुआ है, सही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सेल है और इस सेल का नाम है सिनर्जिड। ये हो गया फिलीफॉर्म एपरेटस। इस साइड इधर ये वैक्यूल और ये एग न्यूक्लियस। इसके अंदर ये दो पोलर न्यूक्लियाई, दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई। और इसके अंदर की तरफ यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ये नॉर्मल कंडीशन है बेटा। यहां पर एक सिनर्जिड और है जो पीछे की तरफ है। जो लास्ट डायग्राम मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो सेक का, उसमें मैंने दो सिनर्जिड बताई थी, एग पीछे था। तो आप जैसे अगर अपन ओरिएंटेशन चेंज करेंगे ना, तो ओरिएंटेशन जब चेंज करेंगे तो हमें कोई भी दो सेल ही दिखाई देंगे। तो अब हमें एक एग सेल और एक सिनर्जिड दिखाई दे रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा सेंट्रल सेल। और यहां पर अब ये आ रहा है पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब में सबसे आगे ये दोनों मेल गैमेट और इसके पीछे की तरफ ये डीजनरेटिंग VCN। क्लियर है बात डायग्राम यहां तक बेटा? बोलो भाई, यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट लेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, एम्ब्रियो सेक में केवल एक ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी, एक से ज्यादा पोलन ट्यूब एंटर जनरली नहीं करेगी। ठीक है ना बेटा, जनरली नहीं करेगी। ठीक है बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन? ओके